Okay, our first question is find the value of the linear polynomial 5x minus 3 if x is equal to 0. Okay, if x is equal to 0, we have to find out the value of the polynomial 5x minus 3. So that means we have to substitute in place of x, we will write a 0 minus 3. 5 multiplied by 0 is 0. 0 minus 3, our answer comes out to be minus 3. Easier? Let's go ahead. We have now x as minus 1 in the second part. If x is equal to minus 1, in our polynomial, if we put that value, we get this. So 5 into minus 1 gives us a minus 5 minus 3. Minus minus a plus. So 5 plus 3 gives you an 8. And our answer comes out to be a negative 8 because 5 has a negative sign. Okay. Next, x equal to 2. So in place of x, we will put a 2 minus 3. 5 twos are is a 10. So 10 minus 3, our answer comes out to be 7. I hope you are all finding it easy till here. Let's go ahead with the next question. Find the value of the quadratic polynomial now once you are given 7s square minus 4s plus 6. अब हमें quadratic polynomial given है तो हम यहाँ पर 7s square minus 4s plus 6 हमारा polynomial है. हमें s की प्लेस पे क्या पुट करना है? 0. तो हम इसे लिख सकते हैं 7 into 0 square minus 4 into 0 plus 6. 0 square 7 into 0 gives you a 0. 4 into 0 again is a 0 plus 6. So our answer comes out to be 6. Similarly, if you have this now, so you have 7s square minus 4s plus 6. So 7 into minus 3 square minus 4 into minus 3 plus 6. Just be very careful when you are substituting the values. जब value substitute कर रहे हो तो ध्यान से करना है. हमें s का स्क्वायर गिवन है तो हमने माइनस 3 का स्क्वायर लिखा है. हमें सिर्फ गिवन है कि 4 s से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने 4 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए लिख दिया. ठीक है. अब हमारे पास है कि माइनस 3 का स्क्वायर मतलब माइनस 3 इंटू माइनस 3. 3 3s are 9 and minus minus plus. So we get 7 into 9 minus 4 minus 3. The answer is plus 12 plus 6. So you have a 63 plus 12 plus 6. What will you get when you add them? So when we add them, you get an 81. Okay. I hope it is clear till here, everybody. When s is equal to 4, we have 7 into 4 square minus 4 into 4 plus 6. 4 square is 16. 7 into 16 minus 16 plus 6. So 7 into 16 is 112 minus 16 plus 6. When you subtract minus 16 and 6, minus plus minus, 16 and 6 give you a 10. So minus 10 and we have our answer is 102. I hope you all found it easy. Let's go ahead with the next one. Next question. Well, now the present age of Salil's mother is 3 times Salil's age. After 5 years, their ages will add up to 70 years. Find their present age. Okay, first tell me, let's make an equation with what is given to us first. So in the first line, we are given that his mother's age. Let's just take his mother's age as M. Is 3 times Salil's age. If Salil's age is S, the mother's age is 3s. Okay. So we are saying that Salil's age, let Salil's age be s years, and then his mother's age will be 3s years. ये हमने फर्स्ट स्टेटमेंट से ही इंटरप्रेट किया है. ठीक है. दैट मदर्स एज यू आर गिवन दैट मदर्स एज इज 3 times मतलब 3 multiplied by the by Salil's age.
अब अच्छा, if you are 13 years now, for example, after 5 years your age would be 18 years. So similarly, if Salil's age today is S, his age after 5 years would be S plus 5. So Salil's age after 5 years will be S plus 5 years. Similarly, his mother's age will be age after 5 years will be equal to 3s plus 5 years. अभी हमने यहाँ तक इंटरप्रेट किया है, ठीक है? They are saying their ages after 5 years will add up to 70 years. तो जब हम इनकी एज 5 years बाद जो इनकी एज आई है इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 70. तो हम इनको अब ऐड कर देते हैं, तो हमें गिवन है s प्लस 5, जो सलील की एज है 5 years के बाद, और उसकी मदर की एज कितनी है 3s प्लस 5, इनको ऐड करके क्या आ रहा है 70. ठीक है, अब इसमें लाइक टर्म्स कौन सी हैं, s और 3s. 3s प्लस s कितना हुआ 4s, और 5 प्लस 5 इज 10, तो हमारा आ गया इक्वल टू 70. अब हमें क्योंकि हमारे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, जो भी हमारे पास पहले वेरिएबल टर्म के अलावा जो भी एक्स्ट्रा है उसको पहले राइट साइड पे ले जाओ. आपके पास क्या आएगा 4s इज इक्वल टू 70 माइनस 10. तो 70 माइनस 10 कितना होता है 60, और हमारे पास s इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 4 को जब हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा डिवाइड, राइट. और 4 वन जार और 4 15 जार, तो वैल्यू ऑफ s कितनी आ गई 15. दैट मीन्स सलील की एज कितनी है, सलील की आज एज कितनी है 15 years, और उसकी मदर की एज कितनी है 3s, मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय 15 विच इज 45 years. ठीक है, तो सलील्स एज present age, Salil's present age is 15 years, and his mother's present age is 45 years. Understood, everyone? Let's go ahead with question number 4. The difference between two positive integers is 63. The ratio of the two integers is 2:5. Find the two integers. Okay, so before we proceed, हमें फर्स्ट स्टेटमेंट की इंटरप्रिटेशन करते हैं पहले. द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई दो इंटीजर्स हैं, उनको जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है 63. हमें बताया है कि ये जो दो इंटीजर्स थे ये किस रेशो में है 2:5. अब 2:5 रेशो में होने का क्या मतलब है कि कोई भी दो नंबर्स थे यहाँ पर, इन दोनों को जब हमने कैंसिल आउट किया तो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आई है 2/5. तो जब भी हमारे पास रेशो में गिवन होता है हम वो रेशो जो होती है उसको अज्यूम करते हैं एज सम वेरिएबल, मतलब किसी नंबर से जिससे हमने कट किया है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमने फॉर एग्जांपल n से कट किया होगा. ठीक है, तो हमारा नंबर बन जाता है ये 2n और 5n. तो जब दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाता है 5n माइनस 2n, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 63. और दोनों 5n और 2n लाइक टर्म्स हैं. 5n माइनस 2n इज 3n इक्वल टू 63. और अगर n 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 जब इधर डिनोमिनेटर में आएगा तो क्या बन जाएगा 63/3 विच इज 21. तो वैल्यू ऑफ n आई हमारी 21, मतलब आपने इन दोनों नंबर्स को 21 से कट किया होगा तो आपका 2:5 आया रेशो. लेकिन अब हमें इंटीजर्स फाइंड करने हैं, तो जो भी ये नंबर था ऊपर 2 जो था, इसको हमने जब 21 से हमारा मेन नंबर कैंसिल किया तो 2 आया. तो हमारे इंटीजर्स क्या हो गए 2n, जिसका मतलब 2 इंटू 21 जो होता है 42, और 5n जो होता है 5 इंटू 21 विच इज 105.
जब इन दोनों को माइनस करके अगर आप चेक करोगे तो आपका आंसर 63 आएगा। ठीक है, लेट्स गो अहेड विद क्वेश्चन नंबर 5। She has 3 times as many 2 rupee coins. So she has some 2 rupee coins, and she has 5 rupee coins. उसके पास 2 रुपीज के कुछ कॉइन्स है, उसके पास 5 रुपीज के कुछ कॉइन्स है। अब इन्होंने बोला है कि उसके पास 3 times 2 रुपीज कॉइन्स है एज शी हैज 5 रुपी कॉइन्स। जितने उसके पास 2 रुपीज के कॉइन्स है, रूबी हैज 3 times as many 2 rupee coins as she have 5 rupee coins। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि उसके पास जितने 5 रुपीज कॉइन्स हैं उससे 3 टाइम उसके पास 2 रुपी के कॉइन्स हैं। तो अगर उसके पास 5 रुपी के कॉइन्स कुछ हमने ए लेट किया है कि ए 5 रुपी के कॉइन्स है उसके पास, तो उसके पास 3 टाइम्स ए उसके पास 2 रुपीज के कॉइन्स है। ठीक है, अब हमें बोला है कि जो भी सारे कॉइन्स को मिला के टोटल उसके पास 88 रुपीज हैं। तो अब हम कैसे फाइंड करेंगे, अपनी इक्वेशन कैसे बनाए हम? उसको बनाने के लिए अगर देखो आपके पास 2 5 रुपये के कॉइन्स होते हैं, तो आप क्या करते हो, 2 into 5, दैट मीन्स आपके पास 10 रुपीज है। अगर आपके पास 3 2 रुपीज के कॉइन्स होते हैं, तो दैट मीन्स आपके पास कितने रुपीज हैं, 6 रुपीज है। सिमिलरली हमें गिवन है कि ये हमारे नंबर ऑफ कॉइन्स है। तो अगर ए नंबर ऑफ कॉइन्स है 5 रुपीज के, तो हम हमारे पास कितने रुपीज हो गए, 5 ए। सिमिलरली 2 रुपीज के 3 ए कॉइन्स हैं, जिसका मतलब हो गया हमारे पास है 6 ए कॉइन्स। एंड इन दोनों को मिला के क्या आ रहा है, 88। तो 5 ए प्लस 6 से कितना होता है, 11 ए, विच इज इक्वल टू 88। और ए की वैल्यू होती है 88/11, विच इज ओनली 8। अगर हमारा ए 8 आया है, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स हमारे पास कितने हैं, 8। और नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स कितने हैं, 3 into 8 मतलब 24। अब इनको अगर आप कैलकुलेट करके देखना चाहते हो तो हम वो भी कर सकते हैं। 5 रुपी के कॉइन्स कितने हैं, 8 मतलब ये बनाते हैं 40 रुपीज। और अगर आप 2 रुपी के कॉइन्स देखोगे 24 मतलब ये बनाते हैं रुपीज 48। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है रुपीज 88। सो आवर आंसर इज करेक्ट। ओके, लेट्स गो ऑन। क्वेश्चन नंबर 6। A farmer cuts a 300 feet fence into two pieces of different sizes. अब एक फार्मर के पास एक फेंस है जिसको वो 2 पीसेस में कट कर रहा है। 300 फीट की उसकी टोटल फेंस की लेंथ है, 2 पीसेस में कट कर रहा है। द लॉन्गर वन, तो जो लॉन्गर पीस है, अब ध्यान से देखना कि मैं स्टेटमेंट के साथ रीड करते करते हम अपनी इक्वेशन कैसे बनाते हैं। द लॉन्गर पीस, लेट दैट बी एल, इज मतलब इक्वल टू 4 टाइम्स मतलब 4 multiplied by एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। तो अगर मेरा शॉर्टर पीस एस है तो मेरा लॉन्गर पीस उसके 4 टाइम्स है, मतलब 4s। ठीक है, और लॉन्गर पीस और शॉर्टर पीस को मिला के टोटल लेंथ फेंस की कितनी है, 300। तो हमने क्या किया, लेट द शॉर्टर पीस बी s feet, and let the longer and let the longer piece be 4s feet।
ठीक है। और इन दोनों को मिलाकर एस और 4s को मिला के हमारे पास कितना आता है 300। एस प्लस 4s कितना होता है 5s। 5s इक्वल टू 300, दैट इम्प्लाइज s की वैल्यू कितनी है 300 अपॉन 5 एंड दैट इज 60। तो how long are the two pieces? The shorter piece length of shorter piece कितनी आई है हमारी 60 feet। और लेंथ ऑफ लॉन्गर कितनी आ रही है लॉन्गर पीस हमारी आ रही है 4 into s, मतलब 4 into 60 जो होता है 240 feet। ओके, moving on to the next question, question number 7, which is also the last question of this exercise. If the length of a rectangle is 3 more than twice its width and the perimeter is given to you as 24, what are the dimensions of the rectangle? Similarly, जैसे हमने अभी पहले किया है, ध्यान से हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपनी पहले इक्वेशन फॉर्म करते हैं। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल को लिख देते हैं हम एल, इज मतलब इक्वल टू साइन 3 मोर, 3 मोर मतलब 3 प्लस करना है, 3 more than twice its width, twice मतलब 2 times its width। ओके, और हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 into l plus b, या इसको हम 2 into l plus width भी तो लिख सकते हैं, ब्रेथ और विड्थ। ओके, सो लेट एंड इन प्लेस ऑफ आर लेंथ हम ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्योंकि हमने बना लिया। तो इसको हम विल राइट लेट द width of the rectangle be w centimeters, then length will be equal to 3 plus 2 times w centimeters। अब हम अपने पेरीमीटर के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और पेरीमीटर हमें कितना गिवन है 24, तो 2 into 3 plus 2w plus w, दैट्स व्हाट वी गेट। अब 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इफ यू ब्रिंग इट दिस साइड ये डिवाइड हो जाएगा, 24 divided by 2 is a 12, so that implies 12 is equal to 3 plus 2w plus w gives you a 3w, 3 is getting added here in the next step, so when you take it this side it will become subtraction, 12 minus 3 is equal to 3 times w। 12 minus 3 कितना होता है 9, 9 is equal to 3w, जिसका मतलब है कि जब 9 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास विड्थ आ जाएगी, 9 divided by 3 is 3, दैट मीन्स हमारी रेक्टेंगल की विड्थ कितनी है 3 centimeters, और हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी 3 plus 2 times w, 2 times मतलब विड्थ मतलब 3, तो हमने जब इसको सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास आएगा 3 plus 2 3 ज़ा 6, दैट मीन्स हमारी लेंथ कितनी है 9 सेंटीमीटर्स। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप वेरीफाई कर सकते हो। हमारा पेरीमीटर कितना होता है 2 into l plus b, एल है हमारा 9, बी है हमारा 3, और 12 प्लस 9 plus 3 is 12, and you multiply, when you multiply it by 2 you get 24। All for this video, we will continue with 2.3 in the next video। Okay, thank you।